everyone, my name is Dr. Sona Rajpal. Students, today I am going to explain what a spherical mirror. Example of the spherical mirror is concave mirror and convex mirror. तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं बेटा? अगर आपको मालूम है, आपको यू ऑल आर अवेयर अबाउट स्फेयर. स्फेयर इज लाइक अ सर्कल और समथिंग लाइक दैट. आपने मैथ्स में किया है. अगर आप इस स्फेयर को, अगर आप इसको मिडल से या कहीं से भी इसको कट कर देते हैं तो you will get something like this, curved surfaces. So these are spherical mirrors. So spherical mirror is that mirrors whose reflecting surface is the part of a hollow sphere. कि जिसका reflecting surfaces जो होता है that could be the part of some sphere. तो spherical mirrors वो mirrors होते हैं जो हम किसी स्फेयर को अगर हम कट कर देते हैं तो you will get the curved surfaces. So these are called as the spherical mirrors. और spherical mirrors दो टाइप का होता है. One is concave mirror and one is convex mirror. So in concave mirror, अगर आपके पास कोई भी concave mirror है, because मैंने आपको बोला है कि जो भी mirrors होते हैं in last video में they are opaque. So अगर आप किसी भी hollow sphere को कट करते हैं and you will get this kind of curved surface, और अगर आप इस surface का ये वाला side को अगर आप पेंट कर देते हैं तो it means you make it as opaque. So this is the curved in portion. Concave means like a cave. So this is a curved in portion. ये जो अंदर वाला portion है, if you are using it as for the reflection of light, then it is called as the concave mirror. Students, जब भी कोई भी होलो स्फेयर को अगर आप कट करते हो तो आपको एक कर्व्ड सरफेसेस मिलेगा. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसका कौन सा वाला साइड रिफ्लेक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं. रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंस बैक ऑफ द लाइट. तो अगर आप ये कर्व्ड इन जो अंदर वाला पोर्शन है, अगर आप इसके ऊपर लाइट फॉल करते हो और इफ यू जस्ट बट यू हैव टू मेक इट ओपेक, और इसका जो प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड साइड है, इफ यू कैन पेंट इट तो then means it is a opaque one. And if you just fall light on this curved in portion, so that is called as the concave mirror. And in another way round, अगर convex mirror वो mirror होता है जिसका जो bulging outward part है, if you can use it for reflection of light, means if you fall light on this part and these light will get bounce back, because मैंने अभी बोला है mirror opaque है और आपको opaque करने के लिए आपको इसका जो कर्व्ड इन वाला साइड है इसको आपको पेंट करना होगा. सो व्हेन यू जस्ट पेंट इट, इट इज ओपेक मींस जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, क्योंकि ओपेक सरफेसेस ही रिफ्लेक्शन करते हैं. एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन? आई एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, दैट इज अ बाउंस बैक. और लाइकवाइज आई वांट टू एक्सप्लेन कि स्फेरिकल मिरर का सबसे अच्छा एग्जांपल है इफ यू हैव अ स्पून इन योर हाउस. अगर आप अपने घर में स्पून देखते हो बेटा, आप स्पून से खाना खाते हो, जो स्पून का जो कर्व्ड इन पोर्शन है, इफ यू यूज इट फॉर द रिफ्लेक्शन ऑन लाइट, बिकॉज इफ यू फॉल लाइट ऑन दिस पार्ट तो दिस इज अ कॉन्केव साइड. ये इसका कॉन्केव साइड होता है. और जो उसका बल्जिंग आउटवर्ड साइड है, इफ यू कैन यूज इट फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं. तो सेम स्पून का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो कॉन्केव साइड होता है, और जो बल्जिंग आउटवर्ड होता है पार्ट उसको हम कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चंस, what is the center of curvature, what is the radius of curvature, pole and the principal axis of a spherical mirror, because these are the curved surfaces. So the center of curvature of a spherical mirror is the center of a hollow sphere of which the mirror is part. तो बेटा center of curvature वो होता है, for example I'll take the concave mirror. This is a concave mirror and this curved in portion I use it for the reflection of light because I am falling light on this part. So I just make it this opposite side, bulging outward side, I just paint it with the any red color. So now it is a opaque. Now I am using this side for the reflection of light, and I want to tell you कि what is the center of curvature, because this mirror, this is a mirror, this is a M and M dash, this is the concave mirror, because it could be the part of some hollow sphere, because मैंने किसी sphere को cut करके इसको बनाया है. So if I just make it like a complete sphere, so now you will see students
this concave mirror is the part of some sphere, and you know हर एक sphere का एक center होता है और that center is called as the center of curvature. Likewise, this is a कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज जो आपका बल्जिंग आउटवर्ड साइड पार्ट है, अगर आप इसको रिफ्लेक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, एंड यू कैन पेंट इट द ऑपोजिट साइड दैट इज कर्व्ड इन साइड टू मेक इट ओपेक. और अगर हम इसको भी एक स्फेयर बनाते हैं, इसका स्फेयर कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? इट इज लाइक दिस. सो इसका भी एक सेंटर होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट because these concave and convex mirror are a part of some sphere, so that is called as the center of curvature. और जो center of curvature concave mirror में होता है, that is always present in the front of the mirror, और center of curvature of the convex mirror, it is always present behind the mirror. If you see above, ये आपका concave mirror है. concave mirror का center of curvature front में है, इसके आगे वाला साइड पे है, और इसका जो है कॉन्वेक्स का, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा इसका पीछे है. सो दिस इज द डिफरेंस वेयर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर आर प्रेजेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. सो पोल वो पॉइंट होता है, इट इज द मिडल पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, इधर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. अब आप पूछेंगे कि मैम मिडल पॉइंट का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस एज अ कॉन्केव मिरर. स्टूडेंट ये आपका कॉन्केव मिरर है बिकॉज यू आर यूजिंग दिस कर्व्ड इन साइड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड इफ आई से दिस इज अ M and M dash, इट इज अ कॉन्केव मिरर. इफ यू सी कि मैम ये कॉन्केव मिरर का लेंथ अगर मैं बोलती हूँ ये 20 सेंटीमीटर का है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, मतलब मिड पॉइंट मतलब इसका हाफ, जो इसका मिडल पॉइंट होगा, दिस इज अ मिड पॉइंट बिकॉज 20 का हाफ कितना होता है 10. सो दिस मिड पॉइंट of this concave mirror, that is called as the pole of the concave mirror. Because half of the concave mirror, क्योंकि आपके पास जितना भी मिरर्स होता है उनका एक लेंथ होगा. अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर का है, उसका जो मिडल पॉइंट होगा that is called as the pole of the mirror. Likewise, if you have a convex mirror, because if you are using this bulging outward part, agar this is your convex mirror, this is again I am saying it is a A and B. If it is a 30 centimeter, if I can say, तो जिसका जो मिड पॉइंट होगा, अगर आप इसको 30 को 2 से डिवाइड करते हो, दैट इज अ 15 सेंटीमीटर, जो भी इसका मिडल पॉइंट होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज द मिड पॉइंट ऑफ एनी मिरर, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, दैट इज कॉल्ड एज द pole of the mirror. Now the question is, what is called as the radius of curvature of a spherical mirror? So radius of curvature, it is the radius of a hollow sphere of a glass of which the concave and convex mirror is a part. तो radius of curvature क्या होता है स्टूडेंट्स? अगेन आई एम सेइंग कि जो भी आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स होते हैं, दे कुड बी द पार्ट ऑफ सम स्फेयर. दिस इज अ कॉन्केव मिरर, or it could be the part of some sphere. I am just going to produce it like this. I can make it a hollow sphere. और हमने बोला हर एक sphere का एक center होता है. This is a center of curvature. और this is a concave mirror. This black one is M and M dash. तो half of the mirror, the middle point of the mirror, that is called as the pole. And the distance between the pole and the center of curvature, this is called as the radius of curvature. So students, this CP, it is called as the radius of curvature, क्योंकि हर एक स्फेयर का एक रेडियस होता है. तो जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. Likewise, if you have a convex mirror, this is a convex mirror because bulging outward side if you are using for the reflection of light, and other side you can make it painted to make it opaque. And this convex mirror is also a part of some sphere, and here also the middle point of this convex mirror, it is called as the pole, and it also has a center. So the distance between pole and the center of curvature, that is called as
radius of curvature of the convex. So again here this CP, it is called as the radius of curvature of convex mirror. Is it clear, students? Now the next question, what is the principal axis of a spherical mirror? Principal axis क्या होता है? It is the straight line which is passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror, that is called the principal axis. Students, अभी तक हमने आपको यही बताया है, कोई भी जो भी मिरर्स होते हैं, एनी मिरर्स, कोई भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, अगर आपने 20 सेंटीमीटर का मिरर लिया, उसका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज अ पोल एंड दिस कुड बी द पार्ट ऑफ स्फेयर. हर एक स्फेयर का एक सेंटर होता है एंड द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस. और जो अपर्चर होता है, अपर्चर ऑफ द मिरर, इट इज द पोर्शन ऑफ द मिरर from which the reflection of the light actually takes place is called the aperture of the mirror. Aperture का मतलब होता है, it's simply it is the size of the mirror. अगर this is a aperture, because this is a m and m dash is a, you can say it is the size of the mirror. So that size of the mirror it is called as the aperture, because aperture वो point होता है कि जहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है जिस पॉइंट पे. बिकॉज जब भी लाइट आप फॉल करते हो इस कॉन्केव साइड पे, तो ये कॉन्केव मिरर कितना लेंथ का है, तो दैट इज कॉल्ड एज द अपर्चर ऑफ द मिरर, बिकॉज अपर्चर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द मिरर. अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ डायग्राम to make you understand what is the principal axis. This is a concave mirror because curved in side, again I am saying, if you are using it for the reflection of light, and the midpoint of it is called as the pole, as it could be the part of some sphere. There is one center and the line passing through the center of curvature, that is called as the, from pole center of curvature, that is called as the principal axis. So this px is called as the principal axis. और अपर्चर क्या है बेटा, ये जो आपका मिरर है, दिस इज आई कैन से दिस इज अ m and m dash. सो आपका ये मिरर, कॉन्केव मिरर का साइज क्या है? इफ यू से इट इज अ 20 सेंटीमीटर, तो दैट साइज ऑफ द कॉन्केव मिरर इट इज कॉल्ड एज द अपर्चर. And likewise in convex mirror may be the half of the mirror, it is called as the pole, and the line passing through the pole and the center of curvature, this is center of curvature, so that is called as the principal axis. And this is called as aperture. This black portion, if it is a 30 centimeter, means this A and B, that size of this convex mirror is 30 centimeter, that is called as the aperture of the convex mirror. Now the next point is, what is the principal axis of a spherical mirror? So what is the principal focus of a spherical mirror? So now you have two mirrors, I have explained. One is concave mirror. So principal focus वो point होता है principal axis पे जहाँ पर आपका reflected rays meet करता है. For example, I'll take the example of a concave mirror. Again, I am saying the midpoint of a concave mirror, it is called as the pole, and there is a some center of curvature, and the line passing through the center of curvature and the pole, it is called as a principal axis. And what is the focus? If I'll just show here, these are the incident ray. These are all are the incident ray, which is parallel to this principal axis. All these rays are parallel to the principal axis. These all are the incident ray, because incident ray ही reflection show करता है, because these incident ray will get bounced back. Is it clear? So they all these reflected rays, they can meet at one point, and where they can meet, that is called as the focus. दैट इज, इसको हम फोकस कहेंगे जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट करता है. और नाउ अगेन आई एम से दैट कुड बी द पार्ट ऑफ सम स्फीयर, दिस कर्व्ड सर्फेसेस. तो यू कैन से दिस इज, यू कैन अज्यूम इफ इट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अ हाफ ऑफ द midpoint of the concave mirror, because this is a concave mirror, that is called as the pole. and focus वो point principal axis पे होता है जहां पर जो
लाइट रिफ्लेक्ट करती है, व्हेन ऑल द रिफ्लेक्टेड रे विल मीट एट वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। और अगर आप देखेंगे कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा फ्रंट साइड पे होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। concave mirror का focus always present in the front of the mirror and it is always a real focus। अभी आप पूछेंगे why it is a real focus, because मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था रिफ्लेक्टेड लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी इमेज बनाता है रिफ्लेक्टेड लाइट बनाता है, और जो भी इमेज रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन में होगा वो हमेशा रियल होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये भी फोकस रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में फोकस है, तो दिस कुड बी अ रियल फोकस। और हम अपने स्टूडेंट्स को जब भी समझाते हैं यही बात बोलते हैं, मिरर में आगे जो भी चीज आगे होगा फ्रंट ऑफ मिरर, वहां पर रियल वर्ल्ड होता है और मिरर के पीछे वर्चुअल वर्ल्ड होता है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शंस में, ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शंस में जो फोकस होगा वो हमेशा रियल फोकस होगा, और कॉनकेव मिरर का हमेशा रियल फोकस होता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। So the principal focus is a point on the principal axis at which all the right ray which is parallel to the principal axis they can meet after reflection from the concave mirror। और स्टूडेंट्स एक बात आपको याद रखना है, हर एक मिरर का एक पोल होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक फोकस होता है स्फेरिकल मिरर्स का। हम आपको बता रहे हैं हर एक स्फेरिकल मिरर्स का, चाहे वो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, सब मिरर्स का एक पोल होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और एक फोकस होता है। इज इट क्लियर? तो नाउ एज पर द अबव, principal focus is always present in the front of a concave mirror। it is always a real because it is always in the direction of the reflected rays, and focus is the midpoint of the radius of curvature। this is also very important। जो भी आपका फोकस होगा बेटा, जैसे अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, half of the concave mirror is called pole and there is a some center of curvature, and the line passing through the pole and center of curvature, it is a principal axis, and this is called as the radius of curvature। अगर आपका radius of curvature 20 सेंटीमीटर का है तो इसका जो मिडवे समझ रहे हो स्टूडेंट्स, हाफ, that is called as the focus। फोकस हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिडवे होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द फोकस। और जो भी डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो एफ एंड दिस इज ऑल्सो एफ, बिकॉज फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस, इट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स, मिरर में पोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज हम मेजर करेंगे वो हम पोल से मेजर करते हैं, और जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, दिस येलो वन, इट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, विच आई अगेन एक्सप्लेन नेक्स्ट। लाइकवाइज here I again explain it। first I am going to make the diagram। I am going to take the example of a concave mirror। this is a concave mirror and this is the side I just painted to make it opaque। half of this mirror it is called as the pole, and line passing through the pole and the center of curvature, it is called as a principal axis। if I'll assume this is a center of curvature, so this distance it is called as the radius of curvature। this CP it is called as the radius of the curvature। and if you just assume the radius of curvature is 20 centimeter, you just assume it, तो जो इसका midway होगा, 20 का midway क्या होगा, 10। so this midway is always a focus। और जो भी distance पोल और फोकस के बीच में होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, दैट इज नोटेड बाय स्मॉल एफ, दैट दिस FP it is equal to small f, that is called as the focal length। और आपको पता है फोकल लेंथ अगर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर रिज्यूम किया है तो इट मीन्स ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो स्मॉल f, दैट इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, मीन्स दिस CF is also F, it is also 10 centimeter। तो you can say radius of curvature जो students होगा, radius of curvature किसके equivalent होगा, that is equivalent to F plus F,
that is equal to 2f. So you can say कि radius of curvature is equal to the double of the focal length. और अगर आपको focal length को निकालना है, small f को निकालना है, तो f is equal to r by 2. मीन्स जो focal length होता है वो radius of curvature का हाफ होता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब भी आपको फोकल लेंथ निकालना है तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइडेड बाय 2 करना है, जब भी आपको न्यूमेरिकल में आएगा. नाउ नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर. इट हैज अ रियल फोकस एंड द रियल फोकस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ मिरर. जो भी मिरर्स होते हैं, हम चाहे वो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, चाहे वो प्लेन मिरर्स है, जो भी चीज़ आगे होगा मिरर में फ्रंट साइड पे वो रियल होगा, और जो भी इमेज पीछे बनेगा तो वो वर्चुअल होगा. और आपको कैसे पता चलेगा? एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा हमें कैसे पता चलेगा विच इज फ्रंट साइड और विच इज बैक साइड. जिस साइड में भी इंसिडेंट रे होगा, because incident ray fall on the mirror, that is the front side of the mirror, और जो उसका ऑपोजिट साइड होगा वो बैक साइड होगा. इज इट क्लियर? और स्टूडेंट्स, जितना भी कॉनकेव मिरर होता है वो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है. बिकॉज वाई इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर? बिकॉज इट विल कन्वर्ज द रिफ्लेक्टेड रे एट वन पॉइंट एंड दैट वन पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस. और कॉनकेव मिरर में फोकस हमेशा आगे होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इट इज ऑलवेज अ रियल फोकस, बिकॉज जो भी चीज रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में होता है वो रियल होता है. सो कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द राइट रेस, मीन्स इंसिडेंट रेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एट वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज द फोकस ऑफ द मिरर. एंड द इमेजेस formed by the concave mirror, that is a very important. जो concave mirrors होते हैं स्टूडेंट्स, उनका रियल फोकस होता है. रियल फोकस मीन्स वो मिरर के आगे होगा. तो इसका मतलब अगर रियल फोकस है तो वो मेजॉरिटी केसेस में वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, मतलब रियल और उल्टा इमेज बनाएगा. मीन्स उसको सारी इमेजेस मेजॉरिटी केसेस में उसका इमेजेस रियल और इन्वर्टेड होगा, एक्सेप्ट वन केस कि जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा और बिग साइज का. कॉन्वर्जिंग में जब भी आपको कॉन्वर्जिंग मतलब जो लाइट को कॉन्वर्ज करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट को बांध के पकड़ के एक साइड पे पोजीशन करता है फोकस पे, तो इट मीन्स वो चीज़ों को बड़ा बड़ा दिखाएगा. जब भी आपको सोचना है बिग बिग इमेजेस कौन बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो आपके माइंड में ऑलवेज कॉन्वर्जिंग आना चाहिए. कॉन्वर्जिंग का मतलब जो लाइट को कॉन्वर्ज करता है, सभी लाइट को पकड़ के एक ही जगह पे बांध के रखता है. जैसे आप सब स्टूडेंट्स को बांध के मैं एक ही पॉइंट पे रखती हूँ, तो इट मीन्स दैट कॉन्वर्जिंग मीन्स वो वर्चुअल इमेज जो बनाएगा बिग बिग इमेज बनाएगा. लाइकवाइज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं बिकॉज ये रिफ्लेक्टेड लाइट को डाइवर्ज मतलब बिखार देते हैं. इज इट क्लियर? और दे हैव, जो भी आपके डाइवर्जिंग मिरर होते हैं उनका वर्चुअल फोकस, और मैंने बोला है मिरर में वर्चुअल फोकस पीछे होता है, तो इसमें इस कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस पीछे होगा और इट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर. और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं. अगेन आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. half of the mirror is called pole, and these are the incident light which is falling on it, and these are the reflected ray. ये reflected ray अपनी direction पे कहीं पे भी नहीं meet करेगा, but whenever you just produce it backward, तो they will meet at one point. That is called as the focus. और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा पीछे होता है और वो हमेशा वर्चुअल फोकस होगा. और द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, उसको हम दिस पीएफ इट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, और द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है इट इज एफ प्लस एफ, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, और जो आपका फोकल लेंथ होगा दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर.
और स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखना है, देखो दीज ऑल आर द रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज अपना डायरेक्शंस में कहीं पे भी नहीं मीट करेगा, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल आर इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, यू कैन सी. सो इफ यू जस्ट प्रोड्यूस दिस रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड, दे विल मीट at one point, that point is called as the focus. और जो भी मिरर के पीछे है, that you always keep in mind, that is a virtual focus. और ये डाइवर्जिंग मिरर क्यों है, बिकॉज ये रिफ्लेक्टेड रे को डाइवर्ज कर देता है, मीन्स दिस रिफ्लेक्टेड रे आर गोइंग इन सम अदर डायरेक्शंस. इज इट क्लियर? अपना अपना डायरेक्शंस में है, बिकॉज इट डाइवर्ज ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज एंड इट focus is present behind the mirror and it always has a virtual focus. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, वो सभी इमेजेस वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, बट ऑफ स्मॉल साइज. वर्चुअल और इरेक्ट और स्मॉल साइज का इमेजेस सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर बनाता है. बड़ा बड़ा जब भी आपको सोचना है, ओनली कॉन्केव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट का बड़ा बड़ा इमेजेस बनाता है, बिग इमेजेस बनाता है, एनलार्ज इमेजेस बनाता है, मैग्नीफाइड इमेजेस बनाता है. इट इज ओनली कॉन्केव मिरर फॉर्मिंग वर्चुअल एंड इरेक्ट बिग साइज इमेज. जितना भी डाइवर्जिंग मिरर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट, सारा केसेस उनका वर्चुअल और इरेक्ट होगा, बट ऑफ स्मॉल साइज. एंड कन्वर्जिंग मिरर लाइक कॉन्केव मिरर forms big size virtual and erect image when the object is between pole and focus of the mirror, which I'll explain the formation of images in my next video. Rest other images formed by the concave mirror are all real and inverted of varying sizes. और जो भी आपका प्लेन मिरर्स होता है, प्लेन मिरर्स भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, बट ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बेटा प्लेन मिरर्स भी आपका वर्चुअल बनाता है. वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जो मिरर के पीछे होती है, और हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसे समझाते हैं, वर्चुअल इमेजेस वो होती है जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिसके हम अगर आप अपना मिरर में देखते हैं, तो अगर आप अपने मिरर में इमेज देखते हैं, यू जस्ट ट्राई टू होल्ड योर नोज, आप अपने नोज को नहीं पकड़ सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो दैट इज अ वर्चुअल. रियल वो होता है जिसको हम फील कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो जिसके हम फेशियल फीचर्स को, नोज को टच कर सकते हैं, तो दैट इज द रियल. जो ऑन स्क्रीन होगा रियल, जो बिहाइंड द स्क्रीन होगा वो वर्चुअल. सो प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेजेस बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल इमेजेस बनाता है, और कॉन्केव मिरर भी वर्चुअल बनाता है. तो ओनली डिफरेंस, प्लेन मिरर सेम साइज का बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर आपका डिमिनिश बनाता है, और कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग तो बिग, यू नीड टू थिंक बिग. So this is a conclusion. Plane mirror, convex mirror and concave mirror. All these three are forming virtual and erect image. एक concave mirror होता है, उसका रियल फोकस होता है, वो रियल इमेजेस भी बनाता है, बट वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑल दीज थ्री मिरर्स आर फॉर्मिंग. ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बिहाइंड द मिरर, तीनों मिरर्स बनाते हैं बेटा, बट सेम साइज का. अगर आपका हाइट 5 फीट है और आपका इमेज भी 5 फीट का बन रहा है वर्चुअल, वो ओनली प्लेन मिरर्स बनाएंगे. और अगर इफ योर हाइट इज 5 फीट और आपका इमेज छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर के सारे केसेस डिमिनिश्ड है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिगर देन हाइट ऑफ इमेज, डिमिनिश्ड इमेज इज वर्चुअल, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर बनाता है. और कॉन्केव मिरर, जो भी कॉन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं, वो बिग साइज वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाते हैं. So students, you always need to remember one thing. Again, I am repeating many times. All these three mirrors are forming virtual erect image. Plane mirror same size का बनाता है. Convex mirror छोटा virtual image बनाता है. और जो बड़ा बड़ा virtual and erect image बनाता है big size, वो only converging mirrors होते हैं, और वो सिर्फ concave mirror है. So in next video, I am going to explain the images formed by these concave and convex mirror. If you like my video, please subscribe my channel for more science videos, science classes at the rate Dr. Sona Rajpal 123. Thank you.